Good evening, everyone. Welcome to Ansarkari. We will take up newspaper of Indian Express of 14 December 2022. First article talks about the India-China clash at Tawan sector. We will take up in the editorial section. Next article talks about Maharashtra government. Maharashtra has set up a panel to track interfaith and intercaste marriages. This will help women to get access to counseling and other to resolve their issues after marriage. Further, center and state welcomes welfare schemes and laws will be more accessible to the women. Then next article talks about the cervical cancer vaccine, which will be rolled out next year for girls aged between 9 to 14. So, human papilloma virus HPV vaccine is being prepared by uh, Serum Institute of India. The vaccine will be called as Cervavac. It will offer protection against four strain of HPV, that is 16, 18, 6 and 11. These vaccine will be given at a lower cost, that is 200 to 400 rupees, and it will give protection against cervical cancer. This is from this learning is taken from the Sikkim experience, where 9 to 14 years of age were first to be vaccinated against HPV. That has given positive result. Further, Delhi government has also rolled out a program for HPV vaccine. Learning from COVID vaccination drive was that the system, the platform, the vaccination drive was made accessible to the public. So, a similar platform such as CoWIN will be used for HPV vaccine also. If a cervical cancer is detected early, then it can be treated as PhD level. The next article talks about drugs, weapon smuggling from Madhya Pradesh, Barwani district, which is the hub of illegal weapons in India, such as pistol, live cartridges, modified gun, and it is being smuggled to other states. This becomes part of internal security issue and how the nexus between the smuggler and mafia element and a separatist group can be drawn from it. Further, Agriculture Department has signed MOU to develop a Krishi decision support system using satellite data. Satellite data is very important in the agriculture sector so that the data can be used to predict the amount of sun rain, amount of rain. It can also analyze the cropping pattern in India, the soil pattern, the soil health, and soil leaching pattern in India, and further how much the urea is required, fertilizer is required, pesticides is required, can be determined more effectively. So, regarding that, Ministry of Agriculture has signed MOU to develop a Krishi decision support system. The कौन सा satellite है? That is a RESAT satellite. It will be useful in support system for agriculture, bioresource, environmental hazard, water resources, disaster management, etc.
We will talk about PLA in editorial section. Next article is on page number 9. What is OIC? OIC is a grouping of Muslim majority countries uh, which secures the human rights of Muslim around the globe. Their criticism of India on the Kashmir issue was replied by stark criticism, condemnation by India. India said that Indian statement was that it has become a mouthpiece of Pakistan. सो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली ये दिखाता है कि कैसे मेजॉरिटी ऑफ द जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ इंडिया का स्टैंड क्या है विथ रिगार्डिंग टू सॉवरेंटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल रिगार्डिंग G20. India is trying to promote the tourist places in coming years as a platform for projecting soft power. For projecting tourism as a soft power, what is required? Required three, four uh, points are required. First is for security of the tourist. Second is cleanness. Third is urban development. Fourth is accessibility of कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ये 3-4 पॉइंट है, तो बहुत सारे पॉइंट में तो काम हो रहा है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सिक्योरिटी ऑफ टूरिस्ट. Security of tourists is a state subject. NCRB maintains the record of the cases. और रिगार्डिंग दैट अभी जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था बिटवीन द DGP एंड द टूरिज्म मिनिस्टर, इसमें ये कहा गया कि कैसे एक यूनिफॉर्म टूरिस्ट पुलिस स्कीम होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया. ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म टूरिस्ट पुलिस स्कीम. The next article talks about the Tawang sector, where India and China troops has clashed. But that is not the first case. And 2005, 2013, 2007, 2007, 2017, 2020 में भी हुआ था. So this article by Jabin T. Jacob has mentioned several classes before 2022, 9 December. That was in 2013 at Depsang. Chinese troops have came across the LAC and they have planted the tents and refused to move for several weeks. फिर ये लद्दाख में भी हुआ था, 2017 में डोकलाम में हुआ था, सेम practice of transgressing into multiple location. Further, गलवान क्लास में हमारे 20 जवान वीर गति प्राप्त हुए थे. सो अभी क्या इंडिया का क्या काउंटर है? इंडिया काउंटर इज दैट इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया इज ऑल्सो पंपिंग बिलियंस ऑफ डॉलर इन नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट प्लान. ये सब. इंडिया इज ऑल्सो टैकलिंग चाइना थ्रू इट्स एलाइज सच एज US. और अभी हाल फिलहाल में एक ऐप एट लीपू लेक और इन उत्तराखंड, Indian Army and US Army both participated in annual exercise. तो ये सब 3-4 रीजन के वजह से चाइना को गुस्सा आया होगा, जो आर्टिकल कहना चाह रहा है, और उसने ये कदम उठाया. फर्दर
Next article talks about the issue of cryptocurrency. This article argues that India should use G20 presidency to push for regulation of cryptocurrency. क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में इन यूएस एफटीएक्स स्कैम हुआ, जिसमें एफटीएक्स में जो भी रिटेलर जो ट्रेडर थे उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं है। फॉर द इंडिया इज ऑल्सो वेरी लो पर कैपिटा परचेजिंग पावर, बट इट रैंक फोर्थ इन क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। तो बिलियंस ऑफ डॉलर जो पंपिंग हुआ है क्रिप्टो में, क्या वो सिक्योर है, से सेफ है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रहा उसमें? क्या वो टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रहा? ये सब गवर्नमेंट को देखना चाहिए। इसलिए ये तो ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि बजट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था 30% इनकम टैक्स ऑन एनी ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो डिजिटल एसेट। और फर्दर देर इज लैक ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेशन ऑफ प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्रिप्टो एसेट। आपका क्रिप्टो एसेट में कोई भी अगर फ्रॉड होता है या फिर लॉस होता है फर्दर, तो कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं है आपको बचाने के लिए। लाइक अदर बैंक्स, बैंक में अगर कुछ सेफ्टी डिपॉजिट लॉस होता है या फ्रॉड होता है या चोरी होता है कुछ भी, फॉर द फॉर द इंडिया में अभी आरबीआई ने एक कॉन्सेप्ट लाया था नया, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, विच वॉज लाइक जस्ट अ इंडियन डिजिटल रुपी, बट वो पायलट स्टेज में है, अभी उसमें प्रोग्रेस करना बाकी है। तो टू regulate the cryptocurrency market and to reduce the number of investors in various legal activity associated with cryptocurrency, there has to be some regulation, some legal framework regarding that. ये कहना चाह रहा है। Further, the next article talks about the India's soft power through film. Bollywood has become most important tool in a soft power, which has helped India to influence larger audience across the globe. तो इसमें कहना चाह रहा है कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं है, द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एज अ होल, इंक्लूडिंग तेलुगु, इंक्लूडिंग अदर languages such as Tamil, Malayalam, has also made inroads into uh, the larger audience across the globe. Right now, after Bahubali, Rajamouli, RRR had made an impact in the international audience. तो ये कहना चाह रहा है कि हम लोग को यूज करना चाहिए बॉलीवुड को, टॉलीवुड को एंड अदर फिल्म इंडस्ट्रीज टू कन्वे आवर ओन थॉट और इमोशन और कल्चर एंड पोर्ट्रे आवर कल्चर, टेल आवर स्टोरी, so that we can build gaps in relationship between countries such as Southeast Asia, Japan, with US, Russia, etc. Further, next article talks about the role of journalism and regulation, कि जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया में क्या क्या इशू है और कैसे क्लैश होता है दोनों का, अपना जो एक वर्किंग मॉडल है कैसे क्लैश करता है। तो ये आर्टिकल मैं दो तीन चार पॉइंट में आसानी तरीके से बता सकता हूँ उसमें कि जो जर्नलिस्ट है दे लव सोशल मीडिया बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई देयर ओन वॉइस, दे कैन गिव दे कैन गिव मोर टाइम to connect dots between and presenting a bigger picture and spending less time in collecting the raw news because that is available on social media itself. Further, it also lowers the cost of news collection. आज जर्नलिस्ट दिल्ली में बैठ करके कोई भी इंडिया कोई भी पार्ट ऑफ द कंट्री है वहां से न्यूज उठा सकता है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फेसबुक, थ्रू व्हाट्सएप एक्सेट्रा। एंड लोग ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं पहले से, मतलब पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर, चाइल्ड इज बिकमिंग मोर अवेयर। तो ये जो पूरा इशू हो रहा है वो हो रहा है कि जर्नलिज्म बोथ हेट एंड लव सोशल मीडिया। क्यों हेट करते सोशल मीडिया को? क्योंकि
They are now at a competitive level with other journalism, with other news agency, and also they are competing with the readers who are now questioning the journalist कि आप जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं या फिर आपका जो न्यूज़ है वो प्रोपेगेंडा है या ये क्लिक पेट है, तो उस पे क्वेश्चन उठ रहा है। तो ये जो पूरा इशू है कि सोशल मीडिया is becoming the amplifier, is becoming the most potent tool for journalists and also for the public। तो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये तो है ही, सोशल मीडिया का प्रेजेंस से बहुत फायदा हुआ है न्यूज़ पब्लिशर को भी, क्योंकि दे कैन रीच डायरेक्टली टू द ऑडियंस एंड लार्जर ऑडियंस, एंड ऑल्सो दे कैन एम्पलीफाई द वॉइस फर्दर। जो इशू है कि क्या जो सोशल मीडिया है इट कैन प्ले क्या 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 वो सोशल मीडिया है वो ज़्यादा पैसा ले सकता है न्यूज़ एजेंसी से कि नहीं। तो जो यूएस में एक बिल पास होने जा रहा है, मतलब होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड जर्नलिज्म कंपटीशन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट। इट सेज दैट जो भी पब्लिशर है न्यूज़ मीडिया का, दे कैन कलेक्टिवली बार्गेन एज अ कार्टेल विद सोशल मीडिया कंपनीज फॉर बेटर कमर्शियल टर्म। हर एक न्यूज़ आइटम जो छपता है सोशल मीडिया पर, उसका कुछ कट होता है सोशल मीडिया का कंपनीज का। तो क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी गिव सर्विस टू द जर्नलिज्म एंड न्यूज एजेंसी टू रीच द ऑडियंस, उनके पास डेटा होता है रीडर्स का कि वो क्या सर्च करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो दे कैन गिव, तो उसके एवज में वो पैसा लेते हैं। तो अगर ज़्यादा पैसा लेंगे तो छोटा जो लोकल न्यूज़ पब्लिशर है उनका घाटा होगा। तो ये जो बिल है जो यूएस में आने वाला है, ये बात करता है कि सोशल मीडिया जो न्यूज़ पब्लिशर है, बिग न्यूज़ पब्लिशर, दे कैन कलेक्टिवली वर्क, हम एक साथ बार्गेन कर सकते हैं। तो क्या ये डिफीट करता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म को कि नहीं? ये अभी इशू हो रहा है पूरा दुनिया भर में। क्या ये प्राइवेट कंपनी वर्सेस प्राइवेट कंपनी का मैटर सरकार को उठाना चाहिए? क्योंकि बोथ सोशल मीडिया एंड न्यूज एजेंसी आर प्राइवेट कंपनी, दोनों है, उसका अपना चॉइस है, वो कुछ को कैसे एक्सपैंड करना है वो खुद सोचेगा, लेकिन सरकार को क्या इसमें घुसना चाहिए? ये पॉइंट है पूरा। तो नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन ऑफ women in CAPF। Right now only 3.68% of total strength are women in CAPF. Earlier the committee had given recommendation that there must be 33% reservation at constable level post in 2016, but still only 3.68% of total strength is there। It has committee also has also observed that क्या क्या इशू हो रहा है प्रिवेंट कर रहा है विमेन को फ्रॉम ज्वाइनिंग द फोर्सेस। हार्श क्लाइमेट, स्ट्रेस, लीव्स, और जो भी कंडीशन है जो ऑपरेट करते सीआरपीएफ वाले जो जवान हैं वो टफ होता है, तो ये इशू हो सकता है। तो मिटिगेट सच चैलेंजेस द कमिटी हैज प्रपोज्ड फॉर ईजिंग द नेचर ऑफ द ड्यूटी। तो ये है पॉइंट। नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द फ्यूजन एनर्जी माइलस्टोन that has been created by US scientist। बेसिक इसका बता देते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो है पॉइंट कि साइंटिस्ट हैज यूज्ड लेजर ऑन अ टारगेटेड फ्यूल टू फ्यूज टू लाइट एटम इनटू अ डेंजर वन। फ्यूजन और फिशन में क्या फर्क है कि फ्यूजन में जो दो एटम है उसको फ्यूज करके एक बनाया जाता है, एक हेवियर एटम बनाया जाता है, वेयर इन फिशन एक एटम को तोड़ हेवियर एटम को तोड़ कर दो लाइटर एटम बनाया जाता है। एंड बोथ द फ्यूजन एंड फिशन process releases a lot of energy that can be used
एज अ सोर्स ऑफ अ क्लीन पावर। तो इसमें बताया गया है कि फ्यूजन जो एग्निशन हुआ था, इट जनरेटेड अराउंड 3.15 मेगा जूल ऑफ एनर्जी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली at 3.5 kilowatt hour. Then next article talks about फ्यूजन एनर्जी। हाँ, इसके आगे क्या क्या है, तो बात करते हैं इसके ऊपर कि जो बेंच मार्क है वो सेट हुआ है साइंस कम्युनिटी में कि दे हैव प्रोग्रेस्ड टू फ्रॉम फिशन टू फ्यूजन। द रिसर्च वाज गोइंग ऑन सिंस 1950s कि कैसे हम लोग फ्यूजन टेक्नोलॉजी को यूज कर सके आम जिंदगी में, नॉर्मल जिंदगी में कमर्शलाइज कैसे कर सके, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं था। पहले बार ऐसा अटेम्प्ट हुआ है जिसमें जो साइंटिस्ट है, यूएस के साइंटिस्ट ने फ्यूजन से एनर्जी, मतलब पॉजिटिव नेट पॉजिटिव एनर्जी बनाया। और ये कमर्शलाइज कब होगा, तो ये आर्टिकल कह रहा है कि कमर्शलाइज हो सकता है कि 20 से 40 साल लगे, 30 साल लगे, वो पता नहीं। तो अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जानने के, फिशन और फ्यूजन में क्या फ़र्क है बता दिया मैंने। उसके बाद कि जो फ्यूजन है इट रिलीजेस अप्रोक्सीमेटली 4 times मोर एनर्जी देन फिशन। सेकेंड पॉइंट, फ्यूजन इज ऑल्सो कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हैज निग्लिजिबल रेडिएशन रिस्क। फिशन में ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हर जगह है, चेरनोबिल में था या फिर जापान में था, वो सब फिशन पर है। फ्यूजन में निग्लिजिबल रेडिएशन रिस्क है, तो जो इन्वायरमेंटल हजार्ड है वो कम है। फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ, दो पॉइंट हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तीसरा पॉइंट। एंड अभी इंडिया किस में है, इंडिया भी कोई प्रोग्राम में है फ्यूजन एनर्जी, फ्यूजन मिशन से रिलेट करके, तो वो ITER है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, सेवरल कंट्रीज, जापान, UK, साउथ कोरिया आर वर्किंग सेपरेटली ऑल्सो एंड कोलैबोरेटिंग इन ITER। तो एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी जो भी हुआ है वो लेजर टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। मतलब पूरा जो लेजर यूज कर करके एक पॉइंट पे फोकस करना था, फ्यूल पे, ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके एट अ वेरी माइक्रो सेकेंड और मिली सेकेंड एंड फ्यू सेकेंड ऑल्सो। क्योंकि जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर बहुत मिलियंस हो सकता है। अब मिलियंस होने से ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई अभी आया नहीं है मटेरियल जो उसको लॉन्ग टर्म उसको झेल सके, हीट को झेल सके। तो वो टूट सकता है या फिर हजार्ड हो सकता है, इसके कारण कि जो फ्यूजन है अभी जो है वो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू सेकंड ओनली। तो ITER प्रोजेक्ट है, इट इज डिजाइंड टू रन अप्रोक्सीमेटली 3000 सेकेंड। और जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुआ है वो लेजर का है, अभी मैग्नेटिक यूज नहीं हुआ है। लेजर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। और वो बोलना चाह रहा है कि ITER जो है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स मशीन देन लार्ज hadron कोलाइडर एट CERN, LIGO प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। The next article talks about the LAC crisis। तो पहले बात कर चुके हैं कि इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स हैव clashed at तवांग सेक्टर in Arunachal Pradesh because China has unilaterally changed the status quo there, and Indian army has prevented the Chinese from changing the status quo. तो तवांग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तवांग इज अ बर्थ प्लेस ऑफ 6th दलाई लामा और इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है फॉर तिब्बतियन बुद्धिस्ट। 14th Dalai Lama took refuge there after he crossed border from Tibet to India in 1959। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्दर नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द प्रपोज फैमिली ID कार्ड। ये फैमिली ID कार्ड है, वो उससे क्या होगा, जो फैमिली पहचान पत्र जिसको कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड। इट 8 डिजिट नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इज दैट इट विल कंटेन ऑल डिजिटल डिटेल्स ऑफ द मेंबर फैमिली, नेम, एज, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। इट विल लिंक टू आधार एंड बैंक अकाउंट। जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी
उसे दो स्टेप डिलीवरी चाहिए होगा वेलफेयर स्कीम का, तो वो आसानी से डिलीवरी हो सकता है। फर्दर इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड वीड आउट डुप्लीकेट राशन कार्ड फ्रॉड, और जो बोगस कार्ड है उसको हटाया जा सकता है। फर्दर इट विल गिव, इट विल इंक्रीज द एक्सेस टू जॉब्स, और it will update the information regarding birth, death, and marriages, which will help in formulating policies that is more people friendly. तो ये जो पूरा होगा, तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि इट विल बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी टू सर्वेलेंस इन सर्वेलेंस। लेकिन क्या वो कंपलसरी है? नहीं। इट इज बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द फैमिली। फर्दर, ये खाली कश्मीर में नहीं हो रहा है, कश्मीर हर जगह हो रहा है। हर जगह, फॉर एग्जांपल इन हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस सच कॉन्सेप्ट। पंजाब भी कर दिया गया, पंजाब भी किया। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज आल्सो लॉन्च्ड यूपी परिवार कल्याण कार्ड, एंड नेक्स्ट जन आधार बाय राजस्थान गवर्नमेंट, वो भी किया। तो सिर्फ कश्मीर में नहीं किया जा रहा है, बाकी स्टेट्स में भी हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट, it is just a data that NPA has been written off by bank at around 10 lakh crore in 5 years। फर्दर जो स्मगलिंग है वो सिर्फ गोल्ड और वेपन्स का नहीं होता, ड्रग्स का भी होता है। इट इज हर्टिंग द इकोनॉमी, ये कहना है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का। हमारे जो आईटी मिनिस्टर है वो कहते हैं कि वी विल कनेक्ट, गवर्नमेंट विल कलेक्ट यूनिफॉर्म एंड हार्मोनाइज anonymous data set to expand the digitization at grassroots level। It will not only help in uh, effective delivery of the service at grassroots level, but also it will reduce the timing for grievances mechanism। Further, next article talks about sudden slump in October industrial output। क्यों जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, इंडेक्स है, वो 4% डिक्रीज हुआ? तो इसका रीजन है कि बाकी सब जो कंजम्पशन है, वो डिमांड वो भी कम हुआ। फॉर एग्जांपल, वी कंजम्पशन डिमांड इन रूरल एरियाज अराउंड -13%, और वीकर ग्लोबल डिमांड ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वो भी डिक्रीज हुआ। तो ये दो तीन पॉइंट है दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।